Really nice having you here. I'm so excited for the topic that we have today. Feel Yes. like it's for everybody. कोई एक specific age group के लिए या फिर एक specific issue Yes. के बारे में नहीं हम बात कर रहे हैं. It's something that everyone I see around us who is going Going. through this. I'm really excited. So how about, okay, it's already 8:30. Let's introduce ourselves. Assalamu alaikum everyone who has joined us. Let's see. I'm really excited to have you guys here because हमारा जो आज टॉपिक है ये हर किसी के लिए है because I know that everyone in our lives is feeling कि हम कहीं ना कहीं पीछे रुक गए हैं, हमारी लाइफ कहीं पे पॉज हो गई है, हम लोग आगे नहीं जा पा Stuck. रहे हैं. मैं हर किसी को ये कहते हुए सुन रही हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं वो यही बोल रहे होते हैं कि आई एम फीलिंग स्टक. ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है ना. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि whether you're feeling stuck in your relationship, your emotional state, your career, जो भी है सबके बारे में हम आज बात करेंगे. And with me I have two beautiful guests here. They both are clinical psychologists, Haseen and Humaira. Would you guys like to tell the audience about yourself a little bit? My name is Tessin Yazdani and I'm a clinical psychologist. I have done my MS from GC, PS from SC College, and I'm really excited to talk about this topic as we all are going through it and we have gone through it, but there is no one to help us. So today is actually it's a very good opportunity for everyone. They will get insight okay, what is wrong and how to unstuck yourself. That's right. Thank you so much for joining us, Haseen. Humaira. Okay, my name is Humaira and I have done MS Health Psychology from Lahore College for Women University. Now I am working in Net College and I am here to helping you about what are the reason behind feeling and how to avoid that. It's really nice having you both here. I just want to, for the audience, I want to ask another question from you guys. Are you guys practicing right now? Are you guys available for the online counseling sessions? Just so that if anyone wants to reach out to you guys, can you guys name out your Instagram handles? My Instagram handle is just Tessin Yazdani, and yes, I'm practicing online and in-person session as well. Okay. And Humaira, what about you? Are you doing the same thing? I'm also practicing online session and my Instagram handle is Therapy Vibes Techniques to Call. Okay. So I'll obviously tag you guys as well. So सबको ताकि पता चल जाए. Let's dive into it. पीछे चलते हैं reason के stuck feel करने की psychological reason क्या. I think that Humaira, you would be the perfect person to explain us कि ये चीज क्या है actually, psychological reasons क्या हैं. Can you share your insights with us? ओके सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि फीलिंग स्टक है क्या, मतलब कि फीलिंग स्टक के पीछे क्या साइकोलॉजी है पूरी, उसकी रीजंस क्या है. हम ये देखते हैं कि बहुत सारे यंग अडल्ट्स जो हैं, ठीक है, बहुत सारी हमारी एडोलेसेंट्स हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो स्टक फील कर रहे होते हैं. ठीक है, तो उनको प्रेशर जनरेट होता है करियर का, रिलेशनशिप का, इटीसी कोई भी चीजें आ जाती हैं. एडोलेसेंस के ऊपर एग्जाम्स प्रेशर भी होता है समटाइम्स. ठीक है, तो उन चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील करने की वजह से स्टक फील कर रहे होते हैं. ठीक है, इसकी साइकोलॉजी देखो तो इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, कोई एक नहीं है जिसकी वजह से इंसान जो है ना समटाइम जाकर जो है ना स्टक हो जाता है. उसको समझ नहीं आ रही होती कि यार ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, मैं ही क्यों ऐसे हूँ. की वजह ये होती है कि कहीं कहीं वो अपने आप को कंपेयर कर रहा होता है, सोशली कंपेयर कर रहा होता है, या फिर अपने इर्द गिर्द लोगों को नोटिस कर रहा होता है, यार इसके तो इतने मार्क्स आ गए, मेरे क्यों नहीं आए हैं इतने. ठीक है, या फिर जो गर्ल्स हैं ज्यादातर वो क्या करती हैं कि यार उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया कि इतनी एज में
ठीक है, हमें शादी होनी जानी चाहिए, मेरी कॉस्टली हो गई, मेरी नहीं हुई है अभी तक। समटाइम बॉयज जॉब में बहुत ज्यादा करते हैं, एक का करियर बहुत ज्यादा आगे चला गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और एक अभी जॉब फाइंड आउट कर रहा है। तो वो कंपैरिजन जो है ना कहीं आपको जो है ना स्टक फील कराता है, ठीक है। आप अपने आप को नहीं देख रहे, आप कंपेयर कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आप किस तरह से उस चीजों को ओवरकम कर रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो। एक ये रीजन होती है। दूसरा जो है, जो लोग स्टक फील करते हैं ना, उनको फेयर और फेलियर भी होता है, खौफ होता है कि यार ये चीज कर लूं तो इसके रिस्क जो है ना हार्म करेंगे, क्योंकि वो ये चीज देख रहा होता है कि चलो मैं ये अपॉर्चुनिटी अवेल करूं, नहीं, वो ये सोच रहा होता है कि मैंने जो है ना पहले भी ये चीज की थी, मुझे फेलियर करना पड़ा, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं डर खौफ भी होता है, ठीक है। दूसरा, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, उनके आसपास की चीजें चेंज होना शुरू होंगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरा, उनके अनरिजॉल्व पास्ट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जैसे कि बचपन में, चाइल्डहुड में कोई मेमोरी, कोई ऐसा ट्रॉमा पड़ा होगा जो कि रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, जिसके बाद जो है ना उन चीजों में जाकर स्टक हो जाते हैं। जब तक उनकी वो चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी ना, तब तक वो आगे मूव ऑन नहीं कर सकेंगे, वो चीजों को देख नहीं सकेंगे, ठीक है। तो एंग्जाइटी है जैसे कहीं हमें जो है ना वो कर रही होती है, हमारे दिमाग में चल रही होती है चीजों को, टेंशन लेना, ठीक है। हम बैठ के ऊपर देखते नहीं है वजह अगर है, अगर मैं एंग्जाइटी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। उन चीजों को करना नहीं, अपने में वो चीजें सोचते जाना, और जो है ना उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्टक फील करते हो। मीन्स कि आप आगे का नहीं देखते, आप पीछे से ही वो चीजें जो है ना आपकी अनरिजॉल्व नहीं होती, जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हो। दूसरा, ये कुछ फैक्टर्स जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किए, एंग्जाइटी वगैरह, ये चीजें, और हमारे के साथ ये चीज बहुत ज्यादा लाने आपकी इतना चीज, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किस तरह से करना है आपने, ठीक है। आप एक बच्ची है बिजनेस किया या बी उसके उसका जॉब नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, ठीक है। तो भी आप फील करते हो जब आप अपनी डायरेक्शन, आपको क्लैरिटी, विजन, सही गोल माइंडसेट के साथ नहीं देख रहे होते, तो जो है ना ये प्रॉब्लम आती है। लास्ट वाला, जिसमें आपको आदत हो चुकी होती है, ठीक है, पास से लेकर अब तक आपकी वो चीजें रिजॉल्व नहीं हुई होती, जिसकी वजह से आप हेल्पलेसनेस को लर्न कर लेते हो, और आगे जाकर भी बजाय इसके कि बैठो, देखो अपनी इमोशन को, उसको लेबलाइज करो उन चीजों की बजाय, ठीक है, अपने आप को जो है ना किसी से बात करने की बजाय किसी साइकोलॉजिस्ट से जो है ना हेल्प लेने की, स्पेशली सब फील कर रहे हो, तो आप उन्हीं चीजों को बैठ कर बार बार मेमोराइज कर रहे हो। आप खुद से ये कह रहे हो मैं तो ये कर नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, हो गया उसका तो मैं अभी तक ये प्रोसेस जो है वो रिसाइकलिंग की वजह से, किसी एक स्टेज की वजह से नहीं होता, थ्रू आउट द स्टेजेस हो रहा होता है, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग। सो हमेरा आपने बोला कि ये फियर इन्वॉल्व होता है ना इसके अंदर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो फियर है, हाउ डज दिस डेवलप, जिसकी वजह से फिर हम ये लूप में स्टक हो जाते हैं कि हमें ये लर्न हेल्पलेसनेस में स्टक हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल के एक बच्चा एग्जाम देने, ठीक है, बोर्ड के पेपर्स देने, उसका एक टेस्ट ठीक नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है ना उसने ये नहीं सोचा कि मैं बैठ के इस टेस्ट को, इसके मेरे मार्क्स क्यों कम आए हैं या ये रीजन क्या थी इसके पीछे, ठीक है, वो उस चीज को लेकर बैठ जाता है, एंड देन वो कॉन्स्टेंटली जो है ना ओवरकम करने की बजाय चीज में स्ट्रक है, ठीक है, और फिर बार बार उसको जब फेलियर का ही सामना करना पड़ रहा है तो वो मूव नहीं कर रहा, वो उसी चीज को पकड़ के बैठा है, और वो डर, वो खौफ, वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से आपके अंदर रह जाता है, जो कि प्रोसेस नहीं होता, उसको प्रोसेस होने की जरूरत होती है, जिसकी वजह से आप हेल्पलेसनेस लर्न कर लेते हो, ठीक है, कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, आपने गोल भी नहीं किया, आपको चाहिए था वहां जाकर अपने फेयर को निकालते, उसको रिजोल्व करते, तो वो आपके अंदर है, आगे मूव कर दो, तो आप जब बड़े डिसीजन होते हो उसको बोलो, आप उसको सही तरह से ले नहीं रहे हो, क्योंकि आपसे क्या
नहीं किया, आपने पीछे से वो चीज की फर्दर लाइफ में भी स्टॉप। Right. You explained it really beautiful. Thank you so much. Tasin, if you have any question for Humaira, you can go ahead and ask her. Well, my topic is related to this fear-based beliefs. So I will Anything be you would covering like it. to, yeah, sure, but like anything you would like to Yeah. add on to her insights. I would say excellent. You have given a very good explanation, and thank you so much. And yes, I'll start right now. Yeah, sure. Go ahead. So basically, we are unable to identify these emotions and these thinking patterns. First of all, कि हमें जो करना चाहिए कि ये जो सोचें आ रही हैं क्या चीज़ है? Is it healthy thoughts or Tasin, negative thoughts? can you please be a little louder? Okay, I should be okay. Yeah, louder. Can you hear me? Am I loud enough right now? Yeah, sure. Yeah. Okay. So basically, we are not able to process our emotions well because we are not able to understand what we are going through at the time. Right. So first of all, the hidden beliefs, the limited beliefs, and the internal dialogue which we make in ourselves. We have to identify that. कि ये जो pattern है, healthy pattern है कि unhealthy pattern. First of all, the fear-based beliefs. One thing is fear of failure. Fear of failure brings a lot of things. Like one of it is shame and disappointment. अगर मैं fail हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? क्या करूँ? Because there is responsibility or there's disappointment in it. Then there is fear of success. Yes, there's fear of success as well. Because success will bring you responsibilities and unwanted pressure on himself. So to avoid that, the individual is stuck. So we have to come. Oh, Yes, that's right. To avoid that, individual stuck. Because overwhelming हो जाता है ना, इतने ज्यादा burden हो जाता है. Because जब success होता है तो ये work overload भी बढ़ जाता है तो वो इंसान उसके cope नहीं कर पाता. right. Then there is And I think that yes. fear of success is a little unknown to everyone. Yeah. People don't realize it that they are fearing the success, and it just makes them fall into this loop. But there are people who are actually perfectionists and they do a lot of work, but they are unable to maintain it. मेंटेन करना अपने सक्सेस को, they're not able to do that. वो प्रेशर Right. इतना ज्यादा हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, तो they are stuck, like brain fog. ब्रेन फॉग एक टर्म है. Yes, Those that's people right. stuck. So, would you So like they to explain this term brain fog for the audience? basically we're not able to process our thinking properly. So there's fear of change. Like, fear of change can be overwhelming to introverts or even extroverts. They're not able to come out of their comfort zone. जब ये होता है तो एक unpredictable events भी होते हैं, उसकी वजह से इंसान चेंज से डरता है. कोई शिफ्टिंग से डरता है, चेंज से डरता है, चेंज ऑफ जॉब से डरता है, तो नॉट एबल टू एक्सेप्ट. There's limited self-belief which we have. I'm not good enough. I'm not worthy. I'm too old or too young. I'm too old or too young या कि ये सोचना कि मेरी एज रुकावट बन रही है to process for success. नहीं. KFC का जो ओनर है वो 53 या 60 का था. He was success then. तब उसने ये काम शुरू किया. That means that you can all do it. Right. Then there's external locus of control, which means that others are responsible for my happiness. तो हमें दूसरे हमें खुश करेंगे, दूसरे उनको हमें खुश करना चाहिए. ये भी एक सोचने का स्टाइल है जो हमें स्टक कर circumstances beyond the external events are beyond our control. मतलब हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है. ऐसा नहीं होता. हमारे कंट्रोल में दो चीजें नहीं है, वो लाइफ और डेथ. बाकी सब कुछ हमारे कंट्रोल में. Decision making to come here at 8:30 for a live session was our decision and it was in our control. Yes. Yes. So this is in our control. Then there is being perfectionist. तो उनमें बहुत highly stress के जाते हैं. इससे I should be perfect. I am worthy of success. मतलब सक्सेस के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन अगर चीजें परफेक्ट नहीं होती, then they are also
and their mistakes are unacceptable. Mistakes are failure. उनको mistakes होते हैं, failure होते हैं, and it will lead to negative consequences. But remember this: there are winners, there are learners, there are no failures. There are no failures. There are That no was failures. There that are, was amazing. yeah, there are winners and there are learners. Then there are people pleasing, मतलब पर्सनालिटी में तो people इसको मैं प्लीज करूंगा, ये हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होता है, वो स्टक हो जाता है, अपना काम नहीं कर पाता. I need to please others. I am responsible for other people's happiness. No, I am responsible for my happiness. मुझे ये बात समझा है, मैं किसी और के लिए नहीं जिम्मेदार कि मैं तो कुछ करूंगी वो खुश है. चाहे जितना मर्जी आप कुछ करो, वो कुछ नहीं हो सकता. That's आप, that's yes. accurate. बिल्कुल So सही कह there रही are unhealthy and negative thought patterns which is one is all or nothing. All or nothing में होगा either black and white thinking जिसको कहते हैं, या तो ये करो या तो वो करो. Between का कुछ नहीं. और ये सोच भी रखना तो फिर बंदा stuck हो जाता. Catastrophizing believes that the worst scenario will happen. वैसा तो पूरा ही होने वाला है. ये सोचो कि ऐसे तो मुझे पूरा ही होगा. अब ये सोचोगे आप कैसे प्रोसेस कर पाओगे, कैसे आगे बढ़ पाओगे. ये माइंड सेटिंग, अच्छा ये मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं, अच्छा मैं भी उसके बारे में कुछ सोच रही हूँ, ऐसा सोचना भी तो ना हमारे लाइफ को मुश्किल कर देता है. फिर हमें क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली हमें थॉट प्रोसेस को चैलेंज करना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, ये अपने आप को एविडेंस देना चाहिए कि हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस. So we'll get into that later. I want to ask कि आपने So I want to ask कि आपने बोला कि हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग जो हैं मेरे बारे में शायद ये सोच रहा है वो सोच रहा है, right? So does that not fall under people pleasing? Is that a different thing? Actually, this will be fall under people pleasing, but this is also falling under the unfold thought patterns. ये thought patterns, thinking patterns मैं describe कर रही थी, जो मैं सारे patterns describe करूँ within 10 minutes of time, तो थोड़े patterns which I have described. And one more thing is overthinking. So I would recommend people this book, How to Stop Overthinking. This is my favorite book. ये basically ये बताता है कि हमारी जो thinking patterns हैं एक vicious cycle बन जाती है. जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उतना ही हम ज्यादा परेशान होते हैं. इसको हमें चैलेंज करना है, जो आई थिंक आप परसीव कर रहे हैं. इसको कैसे करना है, हाउ टू अनस्टक आवरसेल्व्स एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड. एंड द अदर थिंग व्हिच आई वांट टू से कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर. तो एक ये भी चीज है, जब हम कंपेयर करते हैं फलाने ये किया फलाने वो किया, फिर हम वो नहीं करना, हमें अपने आप से कंपेयर करना चाहिए. सही बात है, हमें खुद से करना कि हम आगे की तरफ डायरेक्शन हमारी क्लियर करें. Exactly. Is Nimra here? I am here. Am I not visible or what's happening? No, Abhi, actually, you were stuck. Okay. So I got stuck. Yeah. Okay. So I was saying कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो एक Okay, Nimra, well, I think you're stuck again. Yeah. Something. वेल एक्सप्लेनेशन थी, बहुत अच्छे से समझाया आपने. और स्पेशली जो बात ना आपने कि हमें दूसरा खुश करे, ठीक है. हम लोग ये बहुत ज्यादा चीज है कि हम लोग ये बहुत सोचते हैं कि यार अपनी खुशी हमें खुद को कैसे खुश रखना, हम दूसरों से एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि यार ये हमारे लिए कुछ करे और एंड ऑल दैट. तो ये चीजें मैं स्टक रखती. दैट वाज वेरी गुड पॉइंट. Yes, that was amazing. और क्या मतलब मैं गायब हो गई थी बीच में? I don't know what's happening. Maybe it's my internet. वो स्टक हो गया था, बिल्कुल एक स्क्रीन स्टक हो गया. अब ठीक है. Can you guys like hear me? Yes. You're visible and here. Start now. So I was saying कि एक चीज जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए समझना, वो ये है कि सब इसलिए स्टक फील करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड का या जिंदगी में आगे चलते जाने का मतलब है कोई बिग चेंज. ये समझना बहुत जरूरी है कि चेंज का मतलब या फिर जिंदगी चलते रहने का मतलब ये कोई नहीं है कि कोई ड्रास्टिक चेंजेस आने हैं आपकी लाइफ में, कोई बिग चीज ही होगी तभी आप जो है जिंदगी में आगे जा रहे हैं. इट कैन बी अ सिंपल इमोशनल शिफ्ट,
कोई डिसीजन शायद जो आप अपने लिए ले लें आज की मैंने ओके अब मैंने अपनी लाइफ में इस तरह से बेहतरी लानी है. मे बी यू डिसाइड टू वॉक 5 minutes डेली, मे बी यू डिसाइड टू डू जर्नलिंग, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ चेंज. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस. मूविंग फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है वो डिसाइड कर गोल है, अब हमने सोच लिया गोल है, नाउ रिमोट दबाओ और हम उस पर पहुंचे. दैट कैन नॉट हैपन. लाइक ड्रास्टिक चेंजेस लाइफ में प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली नहीं होते हैं. यू नीड टू वर्क ऑन दैट. यू नीड टू गो थ्रू अ प्रोसेस फॉर दैट. और फिर उसमें जो स्मॉल स्मॉल विंस है यू नीड टू एक्नॉलेज दोज विंस. देन यू विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. लेकिन अगर आप उन स्मॉल विंस को एक्नॉलेज नहीं करें देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फील स्टक इन लाइफ. तब आपको ऐसे लगेगा कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ, राइट? If we see the journey of us being clinical psychologists, right? अब हम इस पूरी जर्नी में सोचे ओके अब मैंने MS भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने VO भी कर लिया, but I'm still feeling stuck. Why? Because I'm not getting maybe 15 clients a week, right? So वो stuck feel करें. लेकिन अब वो बाकी चीजें क्यों नहीं देख रही जो आप करें? You're doing conferences, you're doing collaborations, you're doing certifications, you're working on yourself, on your growth. That means you're not stuck in life. That means you are getting those small wins. उसको acknowledge करना भी तो जरूरी है ना, right? Yes. So I feel like this is very important that people need to learn that how can they should be acknowledging every little step that they're taking. This is very important. Yeah. Right? Okay. Another thing that I feel like is जब हम stuck होते हैं लाइफ में तो उसके पीछे सिर्फ कोई मतलब कोई इमोशन जरूर होता है. जैसे अभी हमारा ने बोला कि learned helplessness है and then you went into detail about the fear और वो सारे overthinking and everything. तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट और मुझे लगती है ये कि उसके पीछे जो आपकी स्टकनेस के पीछे जो इमोशन है उसको एक टैग देना, उसको नेम देना बहुत जरूरी है. उसका मतलब है नाउ यू नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद यू. अवेयरनेस आ जाती है, राइट? वो बहुत ज्यादा जरूरी है. Sure. Yeah. अवेयरनेस जरूरी है उस हिसाब से. How to unstuck yourself. Nimra, Yes, I think कि जब आप अवेयरनेस होती है ना तो हमारे सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं अपने आप को लेकर. जब अवेयरनेस कम हो तो इंसान जो है ना अपने आप को बहुत ज्यादा वो कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि डाउट अपने आप को क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा कर रहा होता है जिसकी वजह से वो स्टकनेस आ रही है. तो लेबल देना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये फील कर रहा है, टेंस फील कर रहा है. वही ना, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि क्या व्हाट आई एम गोइंग टू, बिकॉज़ क्योंकि when we name that emotion ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर बहुत हल्का फील होने लग जाता है. फिर rather than saying कि मैं stuck feel कर रहा हूँ, you start using that word and you acknowledge that और वो फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो. और फिर उस वजह से आपने जैसा कि आप एग्जैक्टली किस एरिया में स्टक फील कर रहे हो, आप किस एरिया में आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. दिस इज व्हाट हैपेंस. In fact, I would like our audience here, if you guys can comment and tell us अगर आप किसी एरिया में अपनी लाइफ में stuck feel कर रहे हैं और if there is any emotion behind that you have just realized there is an emotion. It could be a guilt, it could be fear, it could be anything. I would love to know that. But मेरा आप बताएं कि कभी लाइफ में आपने ऐसा फील किया हो कि हम स्टक थे और उसके बाद में आपको रियलाइज हुआ ओके देयर वाज समथिंग एल्स गोइंग ऑन बिहाइंड दैट. जब मैंने MS किया था ना, मैं MS था 2022 में, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा स्टक फील करती थी. मुझे लगता था यार मेरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरी हो रही. मैंने इतनी इंटर्नशिप्स कर ली, मैंने इतने थीसिस लिख ली, इतनी रिपोर्ट्स बना ली, लेकिन मुझे उसका क्या एडवांटेज है ना. तो मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को सोचती रहती थी, ओवर थिंक करती थी, मैं कुछ स्टेप नहीं ले रही थी. स्टेप से मुराद ये नहीं कि सारा कोई बिग स्टेप. मैंने मतलब कि मैंने जो है ना जब नोटिस किया कि यार ये चीज़ें मेरे माइंड में आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो कैसे मैं इसको ओवरकम कैसे कर सकती हूँ. तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी करती हूँ, कनेक्ट जाती हूँ,
ठीक है, ये एक स्टेप मैंने लिया। जब मैं वहां गई मैंने बहुत सारी नई चीजें जो है ना मैंने देखी। वो था क्या, मेरे लिए जिस कोर्स था ना, जिस एडमिशन था ना, लेकिन वहां पर जाने के बाद मेरे पास चांसेस इतने ज्यादा अच्छे थे। जरूरी नहीं होता कि आप छोटी सी एक चीज से शुरू करो, वो बहुत स्मॉल हो और वो बस वहीं पर खत्म नहीं, वो एक आपका नया जर्नी स्टार्ट हो सकता है, उससे एक आप नया सफर शुरू होता है, जिसके बाद आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें, न्यू एक्सपीरियंसेस करते हो। तो कभी भी एक चीज पर फोकस स्टक नहीं होना चाहिए, उसके रिलेटेड अपने आप को सोचना चाहिए कि हाँ मैं कुछ करना है इस टाइम पे, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता आपको कि मुझे अब इस वक्त बैठकर क्या करना चाहिए। वो सारी वो चीज लिखो, राइट करो, अच्छा ये चीजें, अच्छा मैं चाहती क्या हूँ, मुझे व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ ना। तो जब ये चीजें क्लियर हो जाती है ना, तो हम बहुत जल्दी चेंज अपनी लाइफ में लाते हैं, और जब लाते हैं तो डेफिनेटली यू फील लाइक वेयर आई एम राइट नाउ। That's absolutely right। और अभी जो मेरा ने अपनी स्टोरी शेयर की है, हम NLP की एक टेक्निक जिसको हम रीफ्रेमिंग बोलते हैं, वो मेरे जहन में आई है। एंड एज हसीन मेंशन कि ओवर थिंकिंग बहुत होती है और हमारे थिंकिंग पैटर्न्स में हम लोग ऐसे बन जाते हैं, जिस वजह से हम इस लूप में फंस जाते हैं। आई वांट टू सजेस्ट है कि हम ना जब बात कर रहे होते हैं ना, सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, वो हम सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, वी डोंट इवन रियलाइज दैट कि हम अपने आप को कंटिन्यूसली बता रहे होते हैं कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या शायद दिस इज नॉट फॉर मी, What if stress means होते हैं? यस आई डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, ठीक है, उस इंसान की जितनी लेयर नहीं है मेरे पास कि मैं ये कर सकूं, ठीक है, उसके पास ज्यादा टाइम है, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। दिस इज समथिंग दैट वी आर कंटिन्यूसली टेलिंग आवरसेल्व्स। ये रोकना है हमने अपने आप को। वी नीड टू reframe that, we need to tell ourselves कि okay, maybe now I'm not there, maybe I'm not there right now, but मैं वहां पर जा रहा हूँ। It's taking time, but it's going to happen. You need to start reframing your internal thinking, the self talk that you do with yourself, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली अपने आप को जो बताते रहते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाती है। True. अब वो रियलिटी अगर आपको पॉजिटिव चाहिए, रियलिटी में अगर आपको रिजल्ट चाहिए, then you need to start working on your subconscious. You need to start doing the work over there. अपने आप को चीजें बताएं उस तरह से जैसे आप रियलिटी में देखना चाहते हैं। That's really important, right? Exactly. Is there any intake that you would like to add on to this? Well, I would say yes. We all get stuck in our lives. Even I got stuck in my life. But that time, what happened is, okay, obviously, I love to read books, and especially self-help books. These self-help books actually really helped me out. Obviously, I'm a reader, but not everyone are reader. So Yeah. yes, so people need to. So that's why we have to go to psychologists. Sometimes we watch reels and all this, but reels are not the actual thing. They give you a wrong, false information at times. Okay, how to process Okay. your life and what happiness is about. Basically, we should understand what our purpose is. That's right. What are our goals in life? What are our purpose in life? जब ये fixed हो जाए, जब पता लग जाए, तो life will not be stuck. And I feel like that's actually correct. I feel like we should do another live session on this Sure. particular topic about finding the purpose of your life. और Life. उससे पहले ये बहुत important है कि आपकी values Meaning of- क्या है। You need to Yes. set those values. और उन values के ऊपर अपना purpose set कर सकते हो life. So Exactly. we would definitely talk about that, Talk about that. as well, inshallah. Yes. That's a good point. I will write it down in my diary. Sure, why not? Just elaborate on that as well. Definitely very well there. Yeah, So, that was. then any questions from the audience? See, I have another point that I would like to add on. Okay. मुझे अभी you just mentioned something earlier about people pleasing and about how Yeah. we actually try to relate ourselves to others, right? ये चीजें हम Yes. बहुत ज्यादा करते हैं। So एक और चीज जो सोशल मीडिया का हुमैरा ने जिक्र किया था, तो उससे मेरे ध्यान में आया कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि हम अपनी टाइमलाइन को जो है ना दूसरों की टाइमलाइन से कनेक्ट करने शुरू हो गए। दिस इज हैपनिंग अ लॉट, Comparison है ना? होता है। हाँ, वो सब देख रहे हैं कि अच्छा उसकी ट्रेन तेज चल रही है तो मेरी ट्रेन भी तेज जानी चाहिए। बट इट कैन नॉट हैपन। हो सकता है वो बुलेट ट्रेन में बैठा और आप पाकिस्तानी ट्रेन में बैठे हुए, भाई वो तो वैसे ही 4 घंटे लेट आती है स्टेशन पर। That will never make you happy, ना? That will never make us happy. So मैं ये Yes. कह रही थी, मैंने कहा था कि अपने आप से कंपैरिजन करो।
अगर फर्स्ट टाइम मैं कंपैरिजन करूंगी 5 साल पहले तस्वीर कैसे थी और 5 साल के बाद कैसे और 5 साल के बाद क्या होगी, बिल्कुल अपने आप बिल्कुल कंपैरिजन बिल्कुल। Right. उससे So खुशी rather मिलती than है। comparing yourself with others और अपनी achievements को दूसरे के साथ compare करने, आप लोग अपने आप से compare करो ना, क्योंकि एक यस साल पहले मैं यहाँ पर खड़ी थी, now after 1 year, अब ये भी नहीं करना कि भी एक साल पहले मैं यस डॉक्टर नहीं बनी थी और अभी भी नहीं बनी हूँ, या फिर एक साल पहले मुझे वो जॉब नहीं मिली थी और अभी भी नहीं मिली. Look out for the small wins. Look out for your small achievements. Look how you have grown personally, internally. Look at those things. Emotionally कैसे grow किया आपने, intellectually कैसे grow किया. Those are also things that are your actually achievements. यस That's very important. यस, यस गुड पॉइंट। Thank you. So I think we should यस any other insights that you guys want to add on. Otherwise, we can just go on for the Q&A for take questions from the audience. I think we should go for the question and answer right now. Yeah, sure. Yeah. So Yeah. let's go through the comments. Anybody has mentioned anything? Because आज का टॉपिक यही था ना कि हम लोगों को हेल्प कर सके वो लाइफ में कैसे फील करें कि वो मूव ऑन कर सकते हैं, या कैसे उनको ये पता चले कि ओके दे आर नॉट स्टक. आई रियली होप कि उनको ये रियलाइज हो गया हो कि आप एक्चुअली स्टक नहीं होते हो लाइफ में. ये जस्ट आपको एक नेगेटिव फॉल्स बिलीफ आ रहा होता है अंदर से, एक लिमिटिंग बिलीफ आ रहा होता है जो आपको ये बार बार रिमाइंड कराते हैं कि आप स्टक हो. एंड दैट्स अगेन एन इंटरनल डायलॉग दैट यू मेकिंग योरसेल्फ, कि खुद ही क्रिएट कर रहे हैं आप. यू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर दैट. So you need to start changing that internal dialogue. Yes. When sometimes we are in that bubble and we don't want to go outside of that bubble. जब हम उस Right. bubble में रह के सोचों में रह के तो फिर हम कैसे move on हो सकते हैं? We have to Right. challenge your thoughts. Yes. So while we are on this, अब मुझे ना एक बहुत मजे की एक्टिविटी याद आ गई जिसको हम बोलते हैं visualization. We can try this if everyone in audience is ready and if you guys want to do it, we can try it. It's that how using visualization we can see ourselves in future. हम जिस गोल पर पहुंचना चाहते हैं वहां पर हम पहुंचना अपने आप को देख सकते हैं. If you guys are up for it, we can do it. Yes, of course we can. Okay, Humaira and Thasina ready. And what about the audience? If you guys want to be a part of this activity, please leave a comment. You can leave a flower in the comment. कुछ कलरफुल देख लें comments में. It's all black and white. I actually really practice visualization a lot. I really love it. Okay, let's do it. I want you guys to close your eyes if you can. Yes. Now imagine yourself in a very safe and peace environment. कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सेफ फील होता है और बहुत ज्यादा पीसफुल फील होता है. And look around yourself. वो जगह कौन सी है? What are the feelings? What are the emotions that are rushing in your body? How's the air? How's the environment? And what are you doing? That's very important. Remember, this is a very safe and peaceful environment, a place that you have created for yourself. And you are successful there. You're not stuck anymore in the life. Take in every possible positive thing around there inside you. Absorb it. Imagine yourself as the best versions of yourself. Okay, now you can open your eyes. You're right. Okay, Humaira, how are you feeling? How was I'm it? feeling calm, relaxed. That was Relaxed. nice. Now, do you feel like you can do something about your future? You're ready to take a step forward. Yes, I am ready to. Yes, I feel that I experience that there are so much
motivations, and there are so much chances that can I avail from my future. Exactly, that's what I'm trying to say, and this is why visualization is so helpful because it actually shows you there's so many possibilities in our lives that we are actually not looking at. Why? Because we are constantly thinking about all the things that are not happening in there, right? So Taqi is Yes. saying that he wants to join, but the internet issues. It's okay, Taqi will have this recording posted. फिर आप बाद में इसको practice कर सकते हैं and you can tell us what were the results. How did you feel about it? Okay, Fit Gym Live with Hassan. He wants to join the live. Um, Unfortunately, we cannot take you at the moment. If you have any questions, please leave them in the comments. Haseen को internet issues आ रहे हैं. It's all right, Haseen. I will add you again. This visualization बहुत मजे की technique है. I really love Yes, it. of course. Sorry, I had an internet issue. That's fine. So did you get to visualize or not? Partly. And then I was just trying to fix the internet. Okay. So how did you feel? What I is felt your impression? pretty relaxed and calm. So I think, yeah, this is it from my side. These are all the tips and techniques that I wanted to share with each one of you guys. I hope those were helpful actually. Yes. So if our audience, people who are watching us, if you guys have any question, you can just ask us. We are here. Haseen और Humaira, अगर आप कुछ एड्रेस करना चाहती हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, तो I'm here. I'll answer that. Yes, both of us spoke about how we went through our life. What about you? You tell us about yourself. Okay, I have a similar story to Humaira actually about coming to Canade. So after I did my BS, my bachelor's, I completed it. I think, I completed it in March 2024. उसके बाद जो है मुझे ऐसे लग रहा था 1-2 महीने गुजर गया because obviously I had nothing to do. I was not doing anything. Studies भी नहीं है. तो मुझे ऐसे लगा भाई ये क्या हो रहा है? Everyone around is moving forward and I'm stuck. That actually happened that moment. I remember saying it to myself. Why am I stuck in one place? Everyone around us is moving forward और ये क्या हो रहा है भाई? ये मुझे हुआ था feel. And then I thought, okay, this is not how it should be. I am working to become a clinical psychologist. ऐसे नहीं हो सकता कि मैं खुद ही stuck feel करने लग जाऊँ life में. So I took the initiative in my hands. I started my Instagram page. I started doing webinars, all the knowledge that I had. I started sharing with other students and other colleagues as well. Then I went into, but after doing that webinars and everything, again there came a phase where I felt stuck again because I felt like I'm not learning myself anything, I'm not growing. I am helping others, I'm sharing my knowledge, but that does not mean that I am growing. That does not mean that I am learning anything. So again, I started falling back into that loop. But फिर से मैंने सोचा, okay, no, this is not right. This is not right. कुछ सीखा है तुमने webinar से. You learned how to speak. You learned how to build connections. You learned how to build network. Positive चीजों पर देखना शुरू करो. Then I studied. Then I went for the training, NLP training. That I took the initiative of क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि okay, let's move on. और फिर उसके बाद I came for the course of clinical psychology from Canade. और वहाँ पे फिर a lot of things happened. Yeah. तो सारा कुछ आप लोग के साथ है. We did the conference. Then I got the chance to moderate for the seminar. That was a huge and unexpected thing that happened for me. और फिर उससे मुझे realize हुआ जब मैंने dots connect किए कि शायद वो जो पैटर्न मेरी लाइफ में क्रिएट हो रहा था उस सेमिनार के लिए क्रिएट हो रहा था जब मैं वेबिनार कर रही थी. Same. ताकि मुझे पता चलता कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है. So yeah. This is my life story. This is how I came out of my loop. बात वही है ना, हमें इनिशिएटिव खुद ही लेना पड़ता है. हमें खुद ही रियलाइज करना पड़ता है कि कंट्रोल इज इन आवर हैंड्स एंड वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन. हम सिर्फ बैठ के नहीं कह सकते कि हम फंसे हुए हैं. हमें एक्चुअली निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा. True.
कहते हैं मुझे एंड एफर्ट करना पड़ेगा, यस एफर्ट करना एग्जैक्टली पड़ेगा, अगेन एफर्ट नहीं कर जो होता है नियत कर लिया है मैंने आज नमाज पढ़नी है लेकिन एफर्ट नहीं की, एफर्ट तो नहीं उस की तरह से एंड एफर्ट करना पड़ेगा, उठ के एग्जैक्टली आपको वुजू करके पढ़ना पड़ेगा, इट्स लाइक एफर्ट। यस एंड मुझे उसके आज बाद फिर एक्नॉलेज करना कि अच्छा ठीक है मैंने जो अभी तक किया है वो सारा बुरा नहीं है, मैंने उसमें कुछ अच्छी चीजें भी की हैं, दे आर हाँ एक्चुअली गोइंग राइट है। क्योंकि जैसे मुझे लग रहा था कि ओके मेरे वेबिनार्स में मेरी कोई लर्निंग नहीं है, मेरी कोई ग्रोथ नहीं है, लेटर ऑन आई रियलाइज्ड ओके दैट वाज एक्चुअली माय ग्रोथ, दैट वाज माय लर्निंग। आई वाज यस फीलिंग आई वाज थिंकिंग नेगेटिवली, मैं नेगेटिव स्टोरी टेलिंग कर रही थी, इंटरनल यस डायलॉग खराब था मेरा। So I started working on that after I learned NLP, after I went through the training of NLP, and राइट then I started realizing कि okay, there's something going on subconsciously जो खराब कर रहा है चीजें। यस ओके Yeah. think I know So I overall guess it this was is it for today. yeah, overall it was a very good session, and inshallah It we was can do good. more about. There are many topics to cover, and we can discuss about those as well as next So time. किसी ने question किया है, there's Taqir Taki, he has asked, I have a question. Off topic है but always wanted to ask. I have seen therapist कुछ ज़्यादा नहीं बताते कि like why you're feeling like that etc. They just motivate. I don't know अगर बाकी therapist करते हैं जो A to Z. अच्छा Um, एक चीज जो है ना मुझे ऐसे लगता है कि वी शुड एक्चुअली टॉक अबाउट दिस एज वेल, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन टॉकी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस, वी एक्चुअली शुड एड्रेस दिस कि थेरेपिस्ट कभी भी मोटिवेशनल टॉक नहीं करता है, एम आई रॉन्ग इन दिस एस्पेक्ट, but what are the राइट? roles of the therapist? है The ना, role of the मोटिवेशनल टॉक तो नहीं therapist. करता ना थेरेपिस्ट, ठीक है? वो तो कोचेस होते हैं ना, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो कोच होते एग्जैक्टली हैं, वो करते हैं। एंड यस थेरेपिस्ट ऑलवेज टेल यू दैट व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू, अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर आप अपने ऊपर काम कैसे करेंगे, राइट? एग्जैक्टली। डायग्नोसिस भी बताते हैं, सबकॉन्शियस क्या हो रहा है आपके साथ वो भी बताते हैं, अनकॉन्शियसली आप क्या कर रहे हैं वो भी बताते हैं। सो इफ योर थेरेपिस्ट इज नॉट मेंशनिंग ऑल दोस थिंग्स then maybe you need to reconsider who you're reaching out to. Yeah. Mm. And he's asking how do we know that a therapist is good for us? Would you like to address this, Humaira or Thasi? जब आपको आपका टारगेट प्रॉब्लम जो है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, जब आपको लगे कि वो रिजोल्व हो रही है, जब आपको समझ आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम समझ आना बहुत जरूरी है कि आपके साथ असल में मसला चल क्या रहा है। जब आपका थेरेपिस्ट उस चीज को बाहर निकालता है कि करंट प्रॉब्लम को, देन जब आप आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद जब आप रिलैक्स फील करते हो, जब आपके अंदर आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो रिजोल्व होते हैं, आपकी टारगेट प्रॉब्लम पे प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान, ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, तो आपको चीजें जब रिजोल्व होना शुरू होती है, देन आपको आइडेंटिफाई हो जाता है हाँ ये मेरा गुड थेरेपिस्ट है। You can more add on if I have some point anything. वेल मुझे जो लगता है कि सारे थेरेपिस्ट जो होते हैं अपना अपना उनका एक हिसाब होता है कंडक्ट करने का, लेकिन आपके थेरेपिस्ट पर नहीं होता, असल होता है क्लाइंट होता है। क्लाइंट का ठीक होने की नहीं होना, क्लाइंट कितना डिनाइल में है कि नहीं, क्लाइंट कितना एक्सेप्टेंस में है कि नहीं, एक्सेप्टेंस डिनाइल के फेसेस होते हैं, उसके क्या एंगर आउटबर्स्ट होते हैं, क्लाइंट ने खुद भी काम करना पड़ता है। थेरेपिस्ट तो अपना काम कर रहा हो, they give the Exactly. homework assignment, they will give everything, but client ने खुद अपने बात वही है, कंट्रोल खुद करना पड़ता है। तो Exactly. अगर थेरेपिस्ट है उसको होमवर्क असाइनमेंट दे रहा है, डीप ब्रीथिंग कर रहा है, कोई और Exactly. रिलैक्सेशन एक्सरसाइज दे रहा है ठीक होने के लिए, और अगर क्लाइंट नहीं कर रहा तो फिर क्लाइंट को ही नुकसान है, थेरेपिस्ट का नहीं। सो फर्दर उन्होंने पूछा कि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट इवन हमारी बॉडी ऑर्गन्स के अबाउट भी बता रहे होते हैं, हाउ ब्रेन रिएक्ट्स एक्सेट्रा, बट आई हैव सीन दिस इज मिसिंग हियर, खास करके इन पाकिस्तान। हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस दैट? I don't think it's missing. I think as far as the our teachers are concerned and जितने भी हमारे psychologists हैं वो सारा बताते हैं how your brain is processing, especially जब हम
CBT के बारे में बताते हैं कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इन्वॉल्व है फॉर द स्ट्रेस, फॉर द कॉर्टिसोल हार्मोन, और हैप्पी हार्मोन्स कौन से हैं, तो सारा आई थिंक बताते हैं ऑर्गन्स कौन But से हैं। Takin is asking as a client ना कि वो अगर as a client as a patient जा रहे किसी ये therapist के क्लाइंट पास को भी आप clinic साइको एजुकेट and he करते हो? wants that. Yes, so Taki, Definitely. what we would suggest you that जैसे अभी Tasin ने mention किया, depends on the client. If you want that kind of information, you can just directly be open with your therapist and you can ask them for it. They will get into more detail about it. क्योंकि हमारे Exactly. पाकिस्तान में you know that not everybody has knowledge about it. Not everybody can understand what clinical terms are being used, how body reacts, even if someone is telling you about it, right? So if you're curious about it, if you want to know more about it, then you can be open with your therapist, and I'm sure आप जिसके पास भी जाएंगे, they will be open to tell everything. क्योंकि सारे therapist, सारे psychologists बैठे होते हैं ready बताने के लिए, to talk more about it, to share more about it, because we love talking about our field. We love talking about psychology. We take a lot of pride in it. So yeah, you can be more open to your therapist, and they will definitely let you know what's going on. Yes. So, any other question? Does anyone else has any other question? I have This no questions discussion anymore. was really good, और ये Yes. बहुत ज़्यादा needed भी थी, है ना? Yeah, alhamdulillah. I really enjoyed it. Same आई here. होप कि हमारी ऑडियंस को भी कोई फायदा हुआ हो, सिर्फ हम ही खुद ही एंजॉय करके बैठ जाएं. Obviously, we can actually do कि इसकी short clips बना दो और फिर tag कर दो, तो Yes, फिर yes, we do you can that. have the long clip as well and the short clip as well. सारा picture आ जाए, because एक का part था definitely to tell you what is it about, the second was thinking, and third था जो था how do you do it. Exactly right. You're right. That was a very good session. And we should do We'll do more. that as well, inshallah. So I guess this is it for today. अभी के लिए आज के लिए इतना ही करते हैं, inshallah. We'll do another collaboration soon. It was Yeah, really nice inshallah. having you guys, and was a really healthy and beautiful discussion. I really enjoyed it. Thank you for Yeah. joining. Thank you for letting Thank me you, do Nimra. this with you guys. Okay. Yeah. Okay, take care. Yeah. Take care. Take care.